Mesmerizing scenic beauty, nestled between snow-clad mountains, situated along the beautiful Shiok River, arresting glimpses of streams and green fields. Fascinating history. Describing this land in a few words is nearly impossible. Surrounded by the Karakoram Mountains lies an untouched pearl in the northwestern region of Ladakh. No other place could teach an appreciation of the stillness of time quite like this one. This is the wonderland of Turtuk, a green oasis in a high-altitude desert. Its rugged nature and pure beauty are enough to take one's breath away. This tiny, obscure hamlet with around 4,000 inhabitants is embraced by the Nubra Valley on one side and Baltistan on the other, and is the northernmost village on the edge of India. Turtuk is an enigma in itself. As part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, Turtuk, along with a few other villages, commemorated its 50th year of independence this year. From the 22nd to the 25th of September, Jorbat Liberation is celebrated with cultural festivals in Turtuk and the nearby villages. For years, Turtuk and villages like Chulunka, Garadi, Tyakshi and Thang were almost unknown to the rest of the country. Turtuk is a melting pot of many cultures that have flourished here in the past. To mark 50 years of Turtuk's independence, the NZCC organized a 4-day festival in which almost 200 artists from different parts of the country participated and performed for local as well as international audiences. मेरी बात में है ये सच्चाई, मेरी बात में है ये सच्चाई, ये झूठा मेरा उपदेश नहीं। क्या मेरे भारत जैसा, अरे मेरे भारत जैसा ये कोई देश नहीं, कोई देश नहीं, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं, कोई देश नहीं, भारत जैसा कोई देश। The idea was to connect Turtuk back with mainland India. Turtuk was a part of Pakistan-occupied Kashmir until December 1971. During the 1971 Bangladesh Liberation War, the Indian Army liberated the villages of Turtuk, Chulunka, Garadi, Tyakshi and Thang in the Ladakh region. On 14th December, under the command of Brigadier Uday Singh, and his second-in-command, Major Chewang Rinchen, India's Ladakh Scouts and Nubra Guards liberated Turtuk Valley from Pakistan-occupied Kashmir. On the same day, Pakistani defenders had fled from Turtuk. Men, women and children had been afraid of the potential violence and atrocities to be suffered at the hands of the Indian troops. However, Major Rinchen reassured the villagers of their safety and promised the help of the Indian Army in all respects. The festival was not just a grand celebration.
but a gesture on the part of the central government towards its vision of national integration. It symbolizes Sardar Vallabhbhai Patel's idea of Ek Bharat, Shreshth Bharat. मेरा नाम अहमद शाह है। मेरा एज है 75 है। ये इलाका जो है पहले पाकिस्तान का था। इसके बाद 71 की लड़ाई में अपने फौज ने हमारा थांग तक अपने कब्जे में लिया था। हमारे यहाँ के थांग का गाँव फ्रंट विलेज गाँव पहले एक ही गाँव का था। फिर 71 की लड़ाई में हमारा एक थांग गाँव फ्रंट गाँव पंडिशन हो गया। ये इलाका जो है अभी हमारा थांग है हिंदुस्तान का लास्ट बॉर्डर और फ्रंट विलेज है पाकिस्तान का लास्ट बॉर्डर बन गया सर। अभी 50 साल हो चुका है, ना उनको हम देखा ना हमको उन देखा। 71 से लेकर अभी तक बहुत तरक्की हो चुका है। हमारे आदमियों को अच्छा सुविधा मिल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से हर किस्म का हमको यहाँ सामान जो चीज़ को मिलता है वो मिलता है। The Ministry of Culture, Government of India, assured participation of artists from all over India in an effort to encourage belongingness and harmony. हम कारगिल से आए हैं और हमारे डांस का नाम है बल्टी डांस। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो ये तुर्तुक है, जो यहाँ पे सबों का ख्वाहिश होता है कि वो यहाँ आए। हमें ये परफॉर्म मिला कि हमें मौका मिला कि यहाँ पे हम परफॉर्म करें, तो हमें बहुत खुशी हो रहा है सर। और मज़ा आ रहा है यहाँ पे जो मेन पाकिस्तान के बॉर्डर पे करने में अलग ही मज़ा है सर। ये इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा लिया गया है कि हम आर्टिस्ट है उनको मौका मिलता है कि हम परफॉर्म करें और दूसरे लोगों से भी हमें कुछ सीखने को मिल जाता है। और जो अलग अलग कल्चर के यहाँ पे आ रहे हैं सर, तो उनसे हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। गवर्नमेंट के बहुत अच्छा इनिशिएटिव की और आगे भी ये ऐसा इनिशिएटिव लेते रहें सर। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। This massive, colourful festival was the first of its kind in Turtuk, a rare occasion for the artists of Turtuk to showcase their cultural heritage to the rest of the country. The festival helped locals realize that they are an integral part of India and that India is with them.
नाम हिदायतुल्लाह है। मैं तुर्तुक गांव से ताल्लुक़ रखता हूं और अभी हमने डांस किया है बल्टी कल्चर डांस, फड़े रवि कर्स जिसको तलवार डांस कहते हैं हिंदी में, वो डांस किया है। तो हमें बहुत खुशी है कि इतना बड़ा मंच पे हम पे यहाँ पर परफॉर्मेंस करने का मौका मिला और बड़े बड़े कलाकार आए अलग अलग स्टेट से, तो हमें बहुत खुशी है। हमें सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा प्रोग्राम तुर्तुक जैसे छोटे गांव में भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम बहुत खुश हैं।
To date, people have been ignorant about the centuries-old culture and traditions of Turtuk. The festival will not only help create awareness about this unique culture amongst Indians and foreigners, but will also encourage us locals to preserve it. The attention received, both national and international, by the people of Turtuk because of this festival will enlighten the younger generation on the importance of their culture and encourage them to preserve it for future generations. कल्चर जो है किसी भी नेशन को बाइंड करने का एक मीन्स है, और स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर इतनी डाइवर्स रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, कल्चरल हैं, वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी कल्चर को प्रिज़र्व करें। कल्चर को प्रिज़र्व और प्रमोट करके ही हम जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है अचीव कर पाए हैं आज तक। ये जो चोरबाट का एरिया है जो कि बेसिकली बाल्टिस्तान है हमारे भारत का, वहाँ की कल्चर को हमने कभी भी शोकेस बाहर नहीं किया था और न हम वहाँ पर आकर बाकी अपने जो स्टेट्स हैं उनकी कल्चर को यहाँ पर हमने कभी शोकेस किया था। इस लिहाज से मुझे लगता है ये जो चोरबाट लिबरेशन का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है उसकी एक बहुत ज़्यादा अहमियत है। तुर्तुक किसी मकसद से आए हम यहाँ पे। इन 4 गांव हैं, 4 गांव 1971 में देश के साथ जुड़े थे और आज यहाँ पे लिबरेशन डे या इंडिपेंडेंट 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट ये चारों गांव मना रहे हैं यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर पे। सबसे पहले तो मैं यहाँ के निवासियों को सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ कि आप 50 साल मना रहे यहाँ पे गोल्डन जुबली। सो पूरे देश में 75th इंडिपेंडेंट एनिवर्सरी मना रहे और यहाँ का ये 4 गांव 50th इंडिपेंडेंट एनिवर्सरी मना रहे। इस कल्चर प्रोग्राम का आज के इस 3 दिन का जो कल्चर प्रोग्राम जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे, पूरे देश में ये मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि तुर्तुक भी एक ऐसा इलाका है जो 50th इंडिपेंडेंट एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो ये तुर्तुक के बारे में यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट ने लिखा भारत सरकार को। हमने फिर इस पर पूरा रिसर्च किया और उसके बाद फिर ये चीज़ें फाइनलाइज की कि अगर गोल्डन जुबली है तो क्यों ना उसको गोल्डन जुबली के स्तर पे ही मनाया जाए। तो हमने पूरे भारतवर्ष से कलाकार, हमने नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ से पूरा भी यहाँ पर लगभग 200 कलाकार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब मैंने यहाँ के कौंसलर मेहदी असूद जी से बात की तो वो कह रहे हैं भी हम कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है। हमने कहा भी अगर फ़ौज वहाँ पर लड़ रही है तो हम भी तो कल्चरल फ़ौज हैं, तो हमें क्या आपत्ति है इसमें आने की। तो मैं यहाँ पर पर्सनली यहाँ पे मैंने आके विजिट किया, मैंने देखा कि व्यवस्थाएँ नहीं हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, व्यवस्थाएँ तो बन जाती हैं। जुनून था, एक संकल्प लिया कि हमने करना जरूर है और करना भी ऐसा नहीं करना कि हम देखें जी यहाँ पर कुछ रहने की जगह नहीं है, यहाँ खाने पीने की कमी है, यहाँ पर संसाधनों की कमी है। हमने इस चीज़ को पीछे छोड़ दिया। हमने कहा कि नहीं, ये वैसा ही करना है जैसा फेस्टिवल हम लेह में करते हैं या जैसा फेस्टिवल हम दिल्ली में करते हैं। तो उस तरह का ये क्योंकि गोल्डन जुबली इस क्षेत्र की, जैसा कि पूरा भारत अपने 75वां साल मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमने कहा कि ये यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह का मौका है इन लोगों को टूरिज्म के साथ जोड़ने का, इस स्थान को टूरिज्म के साथ जोड़ने का।
के स्टेज मिलना आसान बात नहीं होती, लेकिन यहाँ के जो कलाकार हैं उनको हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेश जाके जो टैलेंटेड हमारे आर्टिस्ट हैं उनके साथ मंच साझा, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसी तरह के मंच इन्हें भी मिलते रहेंगे। न सिर्फ ये यहाँ इस कोने में बल्कि हमारे देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग रियासत में, अलग अलग स्टेज पे परफॉर्मेंस दिखाएंगे अपना, और मुझे उम्मीद है कि देश मेरा इन्हें प्यार देगा। The festival was a great experience for the locals, as they have never seen so many artists performing together. So many different artists, their colourful costumes, their instruments and performances have left a great impact on their minds. The festival reflects the Prime Minister's vision of unity in diversity. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, देश ये रहना चाहिए, बात मेरे सिलसिला यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस को तार तार करके बनाओ एक सितार, राख भारत छेड़ो मुझ पर, झंझनाओ बार बार, झंझनाओ बार बार। देश से है प्यार तो आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। हमने पूरी दुनिया को प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और शांति का संदेश दिया है, लेकिन जब भी इस देश की शांति को कहीं खतरा हुआ है तो देश के जवानों ने सरहद पर दुश्मन को ललकार कर कहा है कि हिंसा व अलगाववाद का राग नहीं रखने देंगे, लोकतंत्र के मूल मंत्र की शान नहीं घटने देंगे। जिनके हैं नापाक इरादे कान खोलकर सुन ले वे, कसम तिरंगे की हमको, हम देश नहीं बटने देंगे, हम देश नहीं बटने देंगे, हम देश नहीं बटने देंगे। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी न लगना, हंसते डालो चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी न लगना, हंसते डालो चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। मैंने कहा भारत की जय हो, जन गण मन की जय हो, जय हो। यहाँ की जनता मेरे ख्याल में बहुत खुश नसीब है कि देश की इस तरह की झलकी और झांकियाँ देखने को मिल रही है।
और मैं समझता हूँ कि ये खुशनसीबी शायद हम लोगों की भी है। मैं सेना में होने के बावजूद पूरे देश में सब जगह नौकरी कर चुका हूँ, लेकिन अपने कल्चर की इस प्रकार की झांकी आज मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। इसके लिए मैं कल्चरल मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनके तमाम साथियों और हमारे सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं इनका बहुत आभारी हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी इनके कलाकारी का जो प्रदर्शन है उसका खूब आनंद उठाएंगे। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि जो कल्चरल फेस्टिवल आज हम मना रहे हैं ये देश के कोने कोने में हमारे सोशल मीडिया द्वारा पहुंचे, जिससे इस क्षेत्र में टूरिस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा आए और उनको पता चले तुर्तुक, त्याक्षी और थांग, पचाथांग और यहाँ के जितने भी हमारे जो बॉर्डर के गांव हैं उन गांव को देखने के लिए देश से टूरिस्ट खूब मात्रा में आए और जिससे हमारे इस इलाके की भी डेवलपमेंट हो और देश जिस तरीके से आज प्रगति कर रहा है उस प्रगति के पथ पर हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की जनता के साथ मिलकर के यहाँ पर भी कोई डेवलपमेंट करें और इस क्षेत्र को एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे ले जाए, जिसका हम सबको बहुत फायदा होगा। कोई गुजरात, कोई मद्रासी, कोई गुजरात, कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला, सरहद पे मरने वाला, हक भी था भारतवासी, जो खून गिरा परवत पे, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं जरा याद करो मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो जो शहीद हुए हैं जरा याद करो जरा याद करो जरा याद करो भारत कोई महज जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत तो आस्था की प्रकाष्ठा है, श्रद्धा का भाव है। ये देश जवानों का देश है, ये देश किसानों का देश है। इसीलिए हम गर्व और सम्मान के साथ कहते हैं, जय जवान, जय किसान। Coming together of all these artists in the beautifully choreographed performance of the grand finale is nothing
but a reminder of the idea of India, Indianness, togetherness, and communal harmony. Like a valley of flowers, different colors, sizes, shapes, and different fragrances growing together, this festival organized by the NZCC is an attempt to embrace yet one more kind, the people of Turtuk, into the mainstream.